فراق ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے۔ عہد حاضر میں غزل کی اہمیت، اس موضوع پر لال بہادر شاستری گورنمنٹ فرسٹ گریڈ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر محمد منظور نعمان نے شہر کی ایک نجی کالج میں توسیع لیکچر پیش کیا۔ غزل کسے کہتے ہیں، غزل کی کیا خوبیاں ہیں، غزل کا آغاز، غزل کا بدلتا ہوا منظرنامہ، اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان نے تفصیلی گفتگو کی۔ کالج کی طالبات کو آپ نے کچھ اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ غزل میں بریانی کا لطف ہے، غزل میں شہد کی مٹھاس ہے، غزل میں پھولوں کی خوشبو ہے، غزل میں جذبات و احساسات کا سمندر ہے، سماجی معاشی مسائل کو بھی غزل اجاگر کرتی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر منظور نعمان نے غزل کے موضوع پر دلچسپ انداز میں تقریر پیش کی۔ ڈاکٹر منظور نعمان نے اپنے خطاب نایاب میں امیر خسرو، مرزا غالب، علامہ اقبال اور چند دیگر شعراء کی غزلوں کا حوالہ پیش کیا اور اپنے چند اشعار کے ذریعے بھی صنف غزل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پیش ہے غزل کی اہمیت پر ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا یہ خطاب۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ کسی کو بھوک کی تکلیف ہے، anyhow, you called me as a resource person to give lecture about the ghazal and the importance of ghazal in the present scenario. غزل بہت اہم اردو کی صنف ہے۔ ہم بریانی کھاتے ہیں، کوئی لذیذ پکوان کھاتے ہیں نا سبھی، کیسا مزہ آتا ہے، اس سے زیادہ مزہ اس میں ہے، اس لیے کہ یہ غزل پورے ہندوستان کو جوڑتی ہے، نہ صرف ہندوستان کو بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جہاں بستیاں ہیں اردو کی، ان تمام بستیوں کو جوڑتی ہے۔ غزل حالانکہ اردو زبان میں لکھی جاتی ہے، لیکن اس کے تراجم مختلف زبانوں میں ہوئے ہیں۔ غالب مشہور شاعر ہیں اردو دنیا کے، غزل کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں، اور ان کی شاعری کا ترجمہ کنڑ میں بھی ہوا ہے، ریاستی زبان کنڑ میں بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فرینچ زبان میں بھی ہوا ہے، انگریزی زبان میں تو ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ بہت ان کی شاعری اہمیت کی حامل ہے، اور مختلف زبانوں میں وہ شاعری ان کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، ان کا کلام پہنچ رہا ہے۔ اور غزل اردو کی مشہور، مقبول اور سب سے پسندیدہ صنف شاعری ہے، اور اردو زبان ہی میٹھی زبان، رس گھولنے والی زبان کانوں میں، اور اس کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، اور قومی یکجہتی کی زبان ہے، دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے، پیار و محبت کی زبان ہے، اور اچھے اچھے میسیجز دینے والی زبان ہے، اور تہذیب ہمیں کیا ہے بتانے والی زبان ہے، مہذب زبان ہے۔ اور اس کی یہ صنف بھی، جس طرح اردو زبان مشہور ہے، یہ صنف بھی بہت مشہور ہے۔ رشید احمد صدیقی جو کہ بہت ہی مشہور شخصیت ہیں اردو ادب کی دنیا کے، وہ کہتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ اور جان نثار اختر مشہور شاعر ہیں، وہ غزل کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں گوئی آگ چھپا دی جائے، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے، گویا کہ آگ چھپانے کا کام غزل کر رہی ہے۔ آگ میں کیا ہوتا ہے؟ حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں غزل میں ہوتی ہیں۔ اور غزل ہماری شاعری نہیں بلکہ ہماری شاعری کا عطر ہے۔ اعلی احمد سرور اس کے تعلق سے لکھتے ہیں، اور ایک مشہور شاعر درگا سہائے فراق گورکھپوری، حالانکہ دیکھیے زبان کو ہم کسی مذہب سے جوڑتے ہیں، یہ فراق تو ہندو ہیں،
लेकिन ये उर्दू में शायरी करते थे। वो कहते हैं गजल के बारे में, गजल वो बांसुरी है जिसे जिंदगी की हलचल में हमने कहीं खो दिया था और जिसे गजल का शायर कहीं से फिर से ढूंढ लाया, जिसकी लय सुनकर भगवान की आंखों में भी इंसान के लिए मोहब्बत के आंसू आ जाते हैं। तो इस तरह गजल भगवान के आंखों में भी आंसू आने का सबब बन जाती है और गजल जोड़ती है। और गजल न सिर्फ उर्दू जबान में लिखी जाती है बल्कि ये मराठी जबान में भी लिखी जाती है, पंजाबी में भी लिखी जाती है, अंग्रेजी में भी लिखी जाती है और फॉरेन लैंग्वेजेस जर्मन में भी लिखी जाती है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में गजल लिखी जाती है, लेकिन उर्दू में जिस तरह गजल लिखी जाती है उस तरह दूसरी जबानों में गजल नहीं लिखी जाती, इसलिए कि उर्दू गजल के लिए है, मैं समझता हूं गजल उर्दू के लिए है, ऐसा है। और इंतजाम हुसैन है जो बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं, वो कहते हैं कि हमारी इज्तिमाई अलामती निज़ाम की बड़ी अमीन गजल चली आती है। हमारी जो अलामती निज़ाम है उसकी अमीन यानी कि उसको जाहिर करने वाली, उसकी अमानतों को रखने वाली गजल। तो गजल ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रही है। असर हाज़िर में भी इतनी मशहूर है, मकबूल है, पसंदीदा है, जो एक जमाने में हुआ करती थी। जहां भी मुशायरे होते हैं अक्सर गजल ही पढ़ी जाती है, गीत नज़में भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन गजल ज्यादातर, इसलिए कि गजल न सिर्फ हमारे दिलों को झंझोड़ती है, हमारे जहनों को झंझोड़ती है, बल्कि ये दिल से दिल को कायम करती है, उस रिश्ते को मुस्तहकम करती है, दिल से दिल के रिश्ते को। फिराक एक और जगह कहते हैं कि गजल मुख्तलिफ फूलों की माला है। मुख्तलिफ जो फूल है, हम देखते हैं कि गुलाब है, चंपे है, मोगरा है, चमेली है, मुख्तलिफ फूल हैं। इसी तरह गजल भी है। क्या इसके माने? इसके माने यही है कि गजल में हर तरह का मौजू हम बयान कर सकते हैं। जो चीज हम चाहते हैं वो गजल में हम पेश कर सकते हैं। पहले गजल में इश्क और आशिकी की बातें हुआ करती थी, मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। गजल के माने ही क्या है? गजल औरतों से बात करना या औरतों की बात करना, इसके माने हुआ करते थे। ये लफ्जी माने हैं, इसके लफ्जी माने हैं, डिक्शनरी के माने हैं, लगात के माने हैं। लेकिन इसके वसी माने जो इस्तिलाही माने हैं, तो एक दौर वो था सिर्फ इसमें औरतों की तारीफ हुआ करती थी और उनके हुस्न के ताल्लुक से बातें हुआ करती थी, इश्क के ताल्लुक से बातें हुआ करती थी और मोहब्बत और प्यार के ताल्लुक से बातें हुआ करती थी। लेकिन अब वो दौर नहीं, अब ऐसा दौर आया है कि गजल में हर वो मौजू जो हमारी जिंदगी का मसाला है वो गजल में बयान किया जा सकता है। जिंदगी बहुत वसी है, जिंदगी के मसाइल भी बहुत वसी हैं। किसी को भूख की तकलीफ है, किसी को गुर्बत की तकलीफ है, किसी को माश की तकलीफ है, किसी को घर की तंगी की तकलीफ है और किसी को अमन और कौमी यकजहती के ताल्लुक से ख्याल करना है, सोचना है। तो इन तमाम ख्यालात को गजल में कलम बंद किया जा सकता है, बयान किया जा सकता है। तो गजल देखिए, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। इसमें नीम बाज आंखें यानी खुली हुई जो आंखें होती हैं बहुत खूबसूरत होती हैं महबूब की, तो उन आंखों की तारीफ हो रही है। और नाजू की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर ने कहा था महबूब के होंठों की तारीफ की जा रही है कि गुलाब के पंखड़ियों की तरह उनकी होंठ है, नाजुक हैं। ये महबूब की तारीफ एक दौर में होता था। मीर ने ऐसे भी अशार किए उस दौर में कि उनकी आंखों में फिरती हमने सलाइयां देखी, शाह के कहल जवाहिर थी खा के पा जिनकी, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयां देखी। इस शेर में मीर अपने जमाने के उन हालात का जिक्र कर रहे हैं कि बादशाह थे, उनके पांवों की धूल लोगों के आंखों का सुरमा हुआ करती थी, लेकिन उनका तख्त उलट गया, वो मुखय्यद हुए और
ऐसा होता था उस जमाने में, जो भी बादशाह शिकस्त पाता और कोई दूसरा बादशाह फतह हासिल कर लेता तो उसे जेल में डाल देता, या ऐसा भी होता था कि उसकी आंखें ही निकाल देता, सलाइयां फेर कर आंखें निकाल देता था। तो ये पूरी हिस्ट्रीज शेर में है। तो इश्क व आशिकी की ही बातें नहीं होती, बल्कि इसमें और तरह की भी बातें होती हैं, और भी मसाइल जो हमारे ज़माने में पेश आ रहे हैं, चाहे वो हुकूमत के मसाइल हों, चाहे वो फर्द के मसाइल हों, अफराद के मसाइल हों, घर के मसाइल हों, माशरे के मसाइल हों, कौम के मसाइल हों, और मुख्तलिफ अक़वाम के मसाइल हों, तालीम के मसाइल हों, हर तरह का मौजू गज़ल में हम पा सकते हैं, गज़ल में हमें नज़र आता है। और देखिए मुईन अहसन जज़्बी एक मशहूर शायर हैं, उनकी शायरी में भी मुख्तलिफ अनवा के हमें शेर मिल जाते हैं। उनकी गज़ल का एक शेर कि वो कहते हैं कि जब जेब में पैसे होते हैं, जब पेट में रोटी होती है, जब जेब में पैसे बचते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त ये तबस्सुम हीरा है, उस वक्त ये आंसू मोती है। आप थोड़ा शेर पढ़ने के बाद थोड़ा वाह शेर का रिएक्शन भी होना चाहिए। शेर तो बहुत असरअंदाज होता है, शेर के अंदर जादू होता है, शेर के अंदर अट्रैक्शन होता है। आप थोड़ा अट्रैक्ट होना चाहिए आपको भी। जिस तरह शमा जला दी जाती है तो परवाने भागे भागे आते हैं, वो अपना तासुर पेश करते हैं। बास परवाने तो अपनी जान निछावर करते हैं। उर्दू शायरी, उर्दू गजल के इतने बेहतरीन अशार आप खामोश बैठ के ऐसा सुन रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आप भी इन्वॉल्व होइए, इसलिए कि गजल है। हाँ, मुझे मालूम है, थोड़ा उसके बाद आप आएंगे, ऐसे भी अशार आएंगे, आपके ज़ौक़ के अशार भी मैं आपको पेश करूंगा। ये थोड़ा अभी स्टार्ट है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, है ना। आप थोड़ा जान आ रही है थोड़ा, इसलिए कि हमारे पास जो कॉलेज में होते हैं प्रोग्राम्स, चाहे उर्दू का हो चाहे किसी भी मौजू पर क्यों ना हो, पूरा हाल खचाखच भरा होता है। यहाँ का एक अलग मिजाज है, यहाँ की रिवायत अलग है कि सिर्फ उर्दू बच्चों को यहाँ शामिल किया जाता है। हम हिंदी के बच्चों को भी देखिए, हमारे डॉक्टर सतीश साहब हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, हमारे साथ आए हैं, और हमारे स्टूडेंट हैं, पास आउट स्टूडेंट हैं शाहबाज, वो भी आए हैं। रऊफ साहब भी हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो भी तशरीफ लाए हैं। तो ये तमाम उर्दू की मोहब्बत में आए हैं। हालांकि उनका सब्जेक्ट हिंदी है, लेकिन उर्दू को पसंद करता है। मैं टुमकुर में एक लेक्चर के लिए ऐसे ही, वो मौजू उर्दू के ताल्लुक से था, उसमें भी सतीश सर आए थे और हमारे रऊफ साहब भी आए थे। तो इस तरह हमारी एक टीम काम करती है, उर्दू के लिए काम करती है, इसलिए कि ये मिठास वाली जबान है। जहां मिठाई बजती है लोग पहुंचते हैं ना लड़ भर कर, मुझे दो मुझे दो मुझे दो। इस तरह ये उर्दू जबान मीठी है, मिठाई तकसीम करती है। तो हम भी आएंगे बोल के खींचे खींचे चले आते हैं। तो आपके जहन को देखकर मैं बातें कर रहा हूं, इसलिए कि थोड़ा आपके ऊपर से जा रहा था वो कलाम जो मैं कर रहा था, इसलिए थोड़ा मेरी सतह को मैं थोड़ा उस सतह से नीचे लाकर बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ भी वहां भी आपकी सतह में भी बात करूंगा, इसलिए कि मेरा मिजाज भी है ना, थोड़ा अपना भी ख्याल रखेंगे, आपका भी ख्याल रखेंगे। नहीं, दावत में दो जने लोग पहुंचते हैं, वो पहले थोड़ा मैं ख्याल रखूंगा, मेरा तू ख्याल रख, तू मुझे डालना, हाँ मैं तुझे डालूंगा। नहीं तो दूसरे लोग क्या वो डालते रहते हैं, ये इनको मौका ही नहीं मिलता। अब ऐसा ही मैं भी थोड़ा आपको डालूंगा, आप भी मुझे थोड़ा डालिए। आपका डालना क्या है, वाह वाह सुभान अल्लाह, हाँ ऐसा है तासुर। अब आया ऊन पहाड़ के नीचे, ठीक है। अच्छा, तो गजल एक ऐसा फन है, चावल का दाना है ना तो बड़ा रहता है, छोटा ही रहता है। खुलू अल्लाह की सूरत मालूम है ना, खुलू अल्लाह लिखने के बराबर। आले अहमद सरूर कहते हैं चावल पर खुलू अल्लाह लिखना आसान क्या, आसान नहीं ना। ऐसा ही गजल कहना भी आसान नहीं है, इसीलिए आग है इसमें, आग थोड़ा आग डाल तो जल भी सकते हैं। ऐसा है किस्सा। शुबली नोमानी बहुत मशहूर मुहक्किक हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। वो कहते हैं कि गजल का खमीर इश्क व मोहब्बत है, इसका खमीर ही इश्क व मोहब्बत है। और कलीमुद्दीन अहमद एक अच्छे नखाज हैं, चौंका देते हैं हमेशा। गजल नीम वहशी सिंफ शायरी है, कहते हैं नीम वहशी यानी कि आधा बराहना। ये
اور یہ غزل میں چاند کی باتیں ہوتی ہیں, چاندنی کی باتیں ہوتی ہیں, باغ کی باتیں ہوتی ہیں, پھولوں کی باتیں ہوتی ہیں, اور اس کے حسن کی باتیں ہوتی ہیں, اس کی خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں, اس کی نزاکتوں کی باتیں ہوتی ہیں, اور وہاں جو ماحول ہے بلبلوں کی وہ نغموں کی باتیں ہوتی ہیں, قمریوں کی باتیں ہوتی ہیں, اور وہاں کے حسن کی باتیں ہوتے ہیں, وہاں کی تر و تازگی کی باتیں ہوتی ہیں. تو مختلف چیزیں غزل میں ہوتی ہیں. تو ایک طرح اس میں مہک بھی ہے, چہک بھی ہے, اور دریا جس طرح رواں ہوتی ہے اس طرح اس میں روانی بھی ہے غزل میں. تو ہر طرح کی اس میں خوبی ہے, اسی لیے یہ غزل بنتی ہے. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا ایک شعر معنی کا سمندر لیے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معنی کا سمندر لیے ہوتا ہے. اس میں اتنے گہرے معنی ہوتے ہیں, اتنے گہرے معنی ہوتے ہیں. غالب کا ایک شعر ہے, نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر. کیا کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں نہیں آتا. اچھوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, استادوں کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. جب میں ایم اے میں پڑھنے گیا تھا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا ایم اے پڑھنے کے لیے. بس استاد نے سمجھایا کہ اس میں کیا ہے, اتنا سمجھایا کہ یہ کلاس ہی پوری ہو گئی اس میں. اور اس کے بارے میں اتنا لکھا گیا. سلیمان اطہر جاوید ایک بڑے پروفیسر, وہ حیدرآباد میں تھے, پھر تروپتی یونیورسٹی کے بھی چیئرمین رہے. وہ اس ایک شعر, دو ہی لائن ہے چھوٹے, اور ایک لائن میں لکھے تو دونوں آ جاتے ہیں. 100 صفحات کی کتاب اس کے بارے میں لکھی ہے. کتنے؟ 100 صفحات. تو اس میں اتنا معنی ہے, اتنی گہرائی ہے, اتنی گہرائی ہے, اتنی وسعت ہے, اور اس میں اتنے معنی ہیں. میں اس کے معنی کی طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ ایک شعر پر ہی میرا لیکچر ختم ہو جائے گا. اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا, پھر ہماری جو عاجزی ہے, انکساری ہے, اور ہماری جو حیثیت ہے اس کا ذکر کیا ہے. وہ کس طرح کیا ہے, وہ رسم کے ذریعے بھی انہوں نے سمجھا ہے. تو اس دور میں تو میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ مجھے افضل میڈم نے کہا تھا کہ آپ کے بھی اشعار پڑھنے ہیں, آپ کے بھی اشعار سنانے ہیں. تو غزل کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہیں, اور اس میں جو خوبصورتی ہے, کوئی آ رہے ہیں نہیں, ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی خوبی, اس کا سب سے بڑا حسن, اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کا ہر ایک شعر علیحدہ ہوتا ہے. نظم ایک موضوع لیے, ایک ٹاپک لیے, ایک عنوان لیے, اس پر لکھا جاتا ہے. ماں کے اوپر لکھا جاتا ہے, اسی طرح باپ کے اوپر لکھا جاتا ہے, یا ماں باپ اس کے اوپر, اسکول اس کے اوپر لکھا جاتا ہے, یا تعلیمی ادارہ ہے اس کے اوپر لکھا جاتا ہے, یا مختلف عنوانات ہیں. اب نذیر اکبر آبادی نے بھی بہت ساری نظمیں لکھی, دیپاولی پر بھی, ہولی پر بھی انہوں نے نظم لکھی, اور عید الفطر, ایسے مختلف موضوعات پر بھی, تہواروں پر بھی, موسموں پر بھی, پھلوں پر بھی, بارش پر بھی نظمیں لکھی گئی ہیں. سورج پر بھی, چاند پر بھی, دریا پر بھی, پہاڑ پر بھی نظمیں, موضوعات ہیں. لیکن اس کا ہر شعر, جیسا کہ غالب کی میں نے مثال دیا کہ بہت گہرے معنی ہوتے ہیں, تو ہر شعر ایک نظم ہوتا مکمل, ایک عقائد ہوتی ہے, اور اس میں پورے معنی بیان کر دیے جاتے ہیں. اور نظم یہ نہیں ہوتا, نظم میں آپ پہلا شعر پڑھتے ہیں, جب تک آخری شعر نہ پڑھتے بعض نظمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, اس لیے کہ اس کا تسلسل وہاں تک رہتا ہے. اور ورنہ تو آدھی نظم تو اس میں تسلسل ہوتا ہے, بعد میں پھر دوسرا اسی موضوع کے تحت دوسری بات کی جاتی ہے. غزل میں ایسا نہیں, ایک شعر میں بات مکمل کر دی جاتی ہے. ایک شعر حسن و عشق کے تعلق سے رہ سکتا ہے, اور دوسرا شعر دوسرے موضوع پر, گھریلو مسائل پر بیان کیے جا سکتے ہیں. اور عشرت کولاری جو بہت ہمارے دوست تھے, وہ بھی اچھے شاعر تھے, ان کا انتقال ہوا حال میں, تو انہوں نے بھی اپنی غزلوں میں مختلف موضوعات. ایک شعر ان کا, ماں باپ گھر سے ہاتھ پسارے نکل پڑے, ماں باپ گھر سے ہاتھ پسارے نکل پڑے, بچوں کے جب کمائی کے رستے نکل پڑے. ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ گھر میں بچوں کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, پرورش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کہ ماں, بچہ اگر
बिस्तर गीला कर देता है तो दूसरी जगह सुलाती है, फिर वहां भी गीला हो गया, फिर तीसरी जगह, पूरा बिस्तर गीला हो गया, आप उस गीलेपन में मां सोती है और बच्चे को सूखी जगह सुलाती है। इतना मेहनत करके, इतनी तवज्जो के साथ और इतना कोशिश करके उसकी तरबियत की जाती है, उसे पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, आदाब सिखाया जाता है और उसे नौकरी दिलाने तक बहुत मेहनतें होती हैं। लेकिन जब नौकरी मिल जाती है तो ऐसा होता है, नौकरी मिलने से पहले अगर शादी होती है तो शादी के बाद माँ बाप को गुड बाय, टाटा, बाय बाय, ये किस्सा हो जाता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। गजल के जरिए ये पैगाम भी दिया जाता है कि देखिए माँ बाप का कितना मुकाम है। उन्होंने इससे पहले जो अशआर लिखे हैं उसमें हुस्न और इश्क की बातें हैं, एक शेर इसमें उन्होंने ये भी लिखा है। तो इस तरह माँ बाप घर से हाथ पसारे निकल पड़े, बच्चों के जब कमाई के रास्ते निकल पड़े, इस तरह अलग अलग बातें होती हैं। और गजल में एक मतला भी होता है जिससे गजल शुरू होती है। मतला कहते हैं सूरज जहां तुलू होता है, निकलने की चीज, वहां से गजल शुरू होती है। इसमें खाफिया भी होती है, रदीफ भी होती है। अब खाफिया किसे कहते हैं, ये सवाल है। खाफिया, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हुआ, दवा, गया, फिरा, ये माजरा, ये तमाम खाफिया है। और रदीफ क्या है, क्या है, तुझे हुआ क्या है ना, ये क्या है, क्या है, क्या है, ये रिपीट होता है, ये रदीफ है। तो जो पहला शेर होता है गजल का, उसे मतला कहते हैं, निकलने की जगह। इस मतले में पहले मिसरे, दो मिसरे होते हैं। बहुत सारे लोग मिसरे के साथ मिस्री बोलिए, हम लड़कियां हैं, मिसरा लड़का है, हमको लड़कियां मिस्री बोलिए, नहीं, लेकिन मिसरा अलग है, मिस्री अलग है। मिस्री आप तमाम जानते हैं कैसे कलर की रहती है, काली रहती है। कैसी रहती है, काली, फिर कैसी रहती है, गोरी, फिर मिस्री देख के है ना आप। आजकल के बच्चे इससे भी वाकिफ नहीं है, इसलिए कि वो थोड़ा शक्ल से बनी होती है, खन से, शादी में वो बीड़े में देती है ना, वो थोड़े आजकल वो भी नहीं आ गए, छोटे छोटे पैकेट्स आ गए, पैकेट में छोटे छोटे शुगर के वो दे देते हैं। मिस्री का रिवाज ही खत्म हो गया और ठंडी के लिए मिस्री खाई जाती थी पहले। तो मिसरा गजल का जो होता है, शेर का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा दूसरा मिसरा होता है। इन दोनों में भी रदीफ और खाफिया होना चाहिए, रदीफ और खाफिया दोनों में भी होना चाहिए। तो जो उर्दू के से हटकर जो गजलें लिखी जाती हैं मुख्तलिफ जबानों में, उसमें खाफिया तो होता है, रदीफ नहीं होती है। उर्दू ही एक ऐसी वाहिद जबान है जिसमें रदीफ आती है, तो वो चीजें रिपीट होती हैं बार बार। और उर्दू हिंदी करीब करीब है। और आप दाने जानिब से, जावेद अख्तर कहते हैं हमेशा कि दाने जानिब से लिखते हैं तो उर्दू है, बाएं जानिब से लिखते हैं तो हिंदी है, दोनों बहनें हैं, तो ये करीब करीब है। तो यहां पर जो दूसरा मिसरा होता है, दूसरा शेर गजल का, अगर उसमें भी दोनों मिसरों में रदीफ और खाफिया, खाफिया और रदीफ आ गए तो दोनों मिसरों में वो हुस्न मतला कहलाता है। यानी कि वो दूसरा मतला, हालांकि दूसरा शेर है गजल का, लेकिन हुस्न मतला कहलाता है। और गजल का जो आखिरी शेर होता है उसे, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे मख्ता कहते हैं। मख्ता कहने के खत्म होने की जगह, जहां गजल खत्म होती है। तो गजल में बहुत सारे मौज़ूआत भी, और सबसे पहली जो गजल लिखी थी और एक तहकीक के मुताबिक वो अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो पैदाइशी शायर हैं और ये फितरी शायर, 4 लाख अशार उन्होंने लिखे। 5 साल की जब उम्र हुई तो तब से ही अशार लिखना शुरू किए। बहुत बहुत उन्होंने अच्छी शायरी की है। और एक जगह वो कहीं जा रहे थे जंगल बियाबान में, सहरा में, वहां एक कुआं था, प्यास लगी थी तो उन्होंने दरखास्त की थी, जो कुएं से पानी निकाल रही थी, वहां कुछ पिन्हारियां थी, तो उनसे कहा कि पानी पिलाइए। तो उन्होंने गौर से देखा कि आप लगते हैं कि अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो बहुत मशहूर थे। तो उन्होंने कहा हाँ, हम पानी नहीं पिलाएंगे, उस वक्त तक नहीं पिलाएंगे जब तक हमें आप कुछ ना सुना दें। क्या सुनाओ, वो आप तो लिखे हैं ना, वो लिखकर जो है वो नहीं, हम जो कहेंगे वो सुनाइए। क्या कहेंगे,
किसी ने कहा ढोल, ढोल बाजा, किसी ने कहा चरखा, किसी ने कहा खीर, किसी ने कहा कुत्ता। ये 4 लफ्ज हैं, कहते हैं। हाँ, तो ये 4 लफ्जों से आप शेर बनाइए। इंस्टेंट बनाना, बिरयानी पकाना, इंस्टेंट क्या भी नहीं। अब इंस्टेंट टी बनाओ बोलते हैं, इंस्टेंट टी आसान है नहीं? कैसा? चटपटा लो, लाओ स्टो, लो स्टो के बगैर 2 मैचेस के तिल्लियां लो, ये इधर एक रखो, इधर टी हो जाता है। नहीं, ये भी होता है। मैं आपके मिजाज के लिए इसलिए कि इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा था, थोड़ा इंटरेस्ट, दिलचस्पी भी बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बताना कुछ मैं भी आपको देता हूं, आप भी मुझे दीजिए, फिर मेरी सतह पर भी मैं बात करूंगा। तो यहां पर उन्होंने इंस्टेंट का खीर पकाई जतन से, खीर पकाई जतन से, दिया चरखा चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। इसमें ढोल भी आ गया, चरखा भी आ गया, खीर भी आ गया, और हाथी भी आ गया। हाथी नहीं, कुत्ता। हम सुन रहे हैं सर, हाथी का जिक्र नहीं, हाथी बहुत बड़ा होता है। आजकल तो बहुत कुत्ते हम देखते हैं, बाहर गली में नहीं बल्कि घरों में भी कुत्ते रहते हैं, मोहल्लों में भी रहते हैं, और सियासत में भी रहते हैं, हर जगह कुत्ते रहते हैं। ऐसे कुत्ते भी देखे, ऐसे कुत्ते भी देखे, 2 पांव के कुत्ते भी रहे। नहीं, बाद में लड़के मुझे सुनने के बाद, साहब कुत्ता ही बोले, आप कुत्ती नहीं रहे बोले ना, कुत्तियां भी रहती। जहां शादी होकर बहू जाती वहां शुरू सास क्या बन जाती है? बाज घरों में बहुत अच्छा रहता है, वो माँ का दर्जा हासिल करती है, ये बेटी का दर्जा हासिल करती है, रिश्ते बहुत मुस्तहकम होते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत के। और अक्सर देखते हैं कोर्ट कचहरियों में कुत्ती बन जाती है, कभी ये कभी वो। कभी शौहर के लिए बीवी कुत्ती बन जाती है, और बीवी के लिए बाज़ वक़्त शौहर कुत्ता बन जाता है। ऐसा भी माहौल है नहीं है? चल रहा नहीं चल रहा है, ये हम देखते हैं यहां पर। लेकिन गजल में इस तरह कुत्ते नहीं बनने की भी दावत दी जाती है। इंसान है, इंसान बनिए, आप इंसान हैं, इंसानियत का दर्ज दीजिए। कुत्तों की जैसी आपकी जो तबीयत बन गई है, ऐसी तबीयत नहीं होनी चाहिए। आपके अखलाक, आपके किरदार और आपका जो मिजाज होना चाहिए वो इंसानियत का होना चाहिए। गजल यही पैगाम देती है कि इंसानियत हम आम करें, कुत्ते बन के फिरो बोल के नहीं बोलते नहीं। इसीलिए गजल को पसंद करते हैं। ये मुख्तलिफ कौम जो है, मुख्तलिफ जबानें जो हैं, उनको भी जोड़ती है। अब देखे होंगे कि दिल्ली में मुख्तलिफ रेख्ता के प्रोग्राम होते हैं, बज़्म रेख्ता, जश्न रेख्ता मनाते हैं। वहां पर कितने लोग हैं जो उर्दू नहीं पढ़ते, लेकिन वहां उस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, सुनते हैं। गजल के बारे में लेक्चर होते हैं, लेक्चर भी सुनते हैं, और गजल गोई होती है, मुशायरे होते हैं, मुशायरे सुनते हैं। मैं अक्सर पूछता हूं कि मुशायरा गए हैं आप, तो ये जो नस्ल है, खासकर ये जो नस्ल है, तो आप में से कोई मुशायरा गया है कहीं? नहीं। तो यही जवाब मुझे हर जगह मिलता है, हमारे कॉलेज में भी हुई। इसीलिए मैंने मेरे कॉलेज में मुशायरे का इनेकाद किया। मुशायरा क्या है, नई नस्ल को इससे मुतारुफ किया जाए। मुशायरों में नज़में भी पढ़ी जाती हैं, गजलें भी पढ़ी जाती हैं। गजलों के अशआर ऐसे होते हैं कि हॉल पूरा सर पे उठा लेते हैं लोग, वाह वाह इतने जोर से बोलते हैं। अफजल निसा मैडम तो चेयर से उछल कर कूद पड़ी एक शेर पर, ऐसा कूद पड़ी, मैं क्या हो गया इनको देख रहा हो। शेर वैसा था, उसमें ऐसी बात होती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और इसी परवाज की ताकत ना ये परवाज कर रही थी, ऐसा हो गया था। बाद लोग उछल के पड़ जाते हैं गजलों के शेर सुनकर, इसलिए कि उसमें वो कशिश रहती है, वो मखनासियत रहती है, वो जादू रहता है, उसमें वो असर रहता है, वो लचक रहती है। अपने में अपने नहीं रहते, उठ के आके गले लगा लेते हैं बस शायरों को। शायर को कोई मर्द गले लगा तो ठीक है, बात शायरा पढ़ रही है तो उठ के आ गया तो
ये भी हो जाता है, जोश में समझ में नहीं आता ना। लेकिन ऐसा नहीं होता मुशायरों में। आप मुशायरों में ऐसा भी होता है बोल के आप फिर जाके ऐसा होता है गले लगाने का मौका, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर बहरहाल गजल में बहुत तासीर होती है। देखिए बहुत सारे गजल के अशार हैं। मेरे कुछ गजल के ताल्लुक से कुछ अशार हैं। देखिए, तड़पते दिलों की ज़बां है गजल, तड़पते दिलों की, दिल तड़पते रहते हैं, बहुत धक 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 धक, और तड़प भी, बास किसी के लिए तड़पते हैं, बास माँ बाप के लिए तड़पते हैं, माँ बाप के लिए, असातिज़ा के लिए, तालीम के लिए अच्छा है। लेकिन आजकल के माशरे में दूसरों के लिए धक धक करते हैं। हाँ? अब जब धक धक करते हैं, कोई शायर का दिल धक धक करता है तो उसके कलम से अशार निकलते हैं। हाँ, कोई स्टूडेंट के दिल से धक धक करती है तो अलग चीज हो जाती है। अखबारात में पढ़ते हैं, हादिसा बन जाता है, वाकया बन जाता है, तारीख बन जाती है, न्यूज और खबर बन जाती है चीज में। तो यहाँ तड़पते दिलों की ज़बां है गजल, सिसकते लबों की बयां है गजल। हाँ, अब बोलो। दमकते चहकते महकते सुलगते मसाइल से उलझी यहां है गजल। कैसे कैसे मसाइल? दमकते चहकते चमकते सुलगते मसाइल से उलझी यहां है गजल। तरक्की की खातिर तनज़्ज़ुल की जानिब, तरक्की की, लोग तरक्की कर रहे हैं समझते हैं अपने आप को। वेस्टर्न कल्चर में ऐसे अपने आप को लेकर चले गए हैं कि लिव इन कल्चर आ गया है, शादी का रिवाज ही खत्म हो गया, साथ में रहते। ये कोई मजहब ही इसकी इजाजत नहीं देता, ये नया कल्चर शुरू हो गया है। इसीलिए अल्लामा इकबाल शायर है, मशरिक हैं। शायर मशरिक किसे कहते हैं? जो मशरिकी ख्यालात रखते हैं। अब आप वेस्टर्न लिबास खरीदना चाहते हैं, दुकान में जाकर दुकान वाला पूछेगा बच्ची के लिए थोड़ा रेडीमेड चाहिए, वो पूछेगा इंडियन या वेस्टर्न। अब आप इंडियन बोले तो अलग रहता है, वो चूड़ीदार रहता है, वो रहता है। वेस्टर्न बोलते ही आस्तीन वहां से फटी हुई, गला नीचे आ गया हुआ, ये इधर चढ़ गया हुआ, ऐसा रहता है नहीं? तो वेस्टर्न का ही ऐसा है कि वो इधर से उधर से। तो वहां वेस्टर्न कल्चर में यह बात भी है। देखिए, ईस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में क्या फर्क है। वहां कुछ भी उस्ताद कह देता है तो अगर शागिर्द कंप्लेंट करता है तो जेल। बाप उतनी मेहनत से पालता है कि वैसा किया, उसे गुस्सा आके फोन कर दिया, क्या भी नहीं, बाप को जेल, मां को जेल। और माँ बाप बूढ़े होते हैं तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो पूरी फैमिली आ जाती है, वॉचमैन को रोकना पड़ता है, रुकिए रुकिए, ये किक जाओ, ऐसा बोलता है। आईसीयू में रहते तो जा जाके झांक झांक के देखते हैं, नहीं वहां वैसा नहीं, ले जाके हॉस्पिटल में डाल देते हैं, वो जाते नहीं। नर्सा देख लेना, नर्स ही उनकी वालिदा, उनके वालिद, उनके रिश्तेदार सब कुछ हैं। और बूढ़े हो गए तो हम कितना ख्याल रखते हैं, अब्बा ये खाती पसंद से, ये लेके जाते देते हैं, अम्मी ये पसंद से पहनती, ये लेके जाते देती। जो वफादार बच्चे हैं नहीं है तो फिर वो अच्छा। यहाँ भी जरा ऐसा कल्चर शुरू हो गया, इसीलिए ओल्ड एज होम शुरू हो गए हैं। गजल में ये भी बयान करके कहा जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गजल हर एक मौजू को अपने अंदर लेती है, इसीलिए गजल की उतनी मकबूलियत है, उसे पसंद करते हैं, मशहूर है और महबूब है। तो यहाँ एक अब शुरू हो रहा है, वहां तो पहले से ही चला आ रहा है कल्चर। माँ बाप बूढ़े होते ही ओल्ड एज हो, इंतकाल होता है माँ बाप का, बच्चे ही कहीं हैं, वो उसको दफनाने वाले दूसरे रहते हैं, हाँ लेके जाके कब्रिस्तान में गाड़ जलते दूसरे। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ कितना एहतमाम, वो रिश्तेदार आ गए, वो आ गए, खाना खा लो, चाय पी लो, पड़ोस वाले लाके पपड़ निपड़ क्या कह देते नहीं, बहुत कुछ देते, ऐसा किस्सा है यहाँ। वहां वैसा नहीं है। तो बहरहाल ये यहाँ का मिजाज है। तो अल्लामा इकबाल शायर मशरिक यहाँ की तहजीब को बयान करता है और उन्होंने भी गजलें लिखी हैं।
तो उनकी गजलें भी बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनके यहाँ ज्यादा इस्लाह का पहलू नजर आता है। गालिब के यहाँ मुख्तलिफ तराकीब भी हैं, तो उनकी तराकीब बहुत हैं और उनके शायरी में गहरे माने हैं। अब ये शेर है उनका, मगज को बाग में जाने न दीजो कि नाहक खून परवाने का होगा। एक छोटा शेर है। इस मगज बोले तो मक्खी है, वो कौन सी मक्खी? शहद की मक्खी है। कौन सी मक्खी? बाग में जाने मत दो उसको, इसलिए कि जाने दिए परवाने का खून हो जाता है। तो परवाना, मक्खी, बाग, ये क्या ताल्लुक है? खून कैसा करती है मक्खी जाकर? मक्खी खून करती है? नहीं ना। तो मक्खी खून नहीं करती, फिर ये कैसा है? ये भी है ना। लेकिन मक्खी के खून की बात है तो मेरा एक शेर है, टमाटर की पत्तियां देती हैं दरस हमको, टमाटर की पत्तियां देती हैं दरस हमको, सलीखे से हुनर से जीत जाएं जंग को। इस शेर में सलीखे से हुनर से जीत जाएं जंग को, मेरा शेर है ये। इस शेर की तारीफ भी मैं इसकी तशरीह भी करूंगा कि टमाटर का पौधा आप देखेंगे ना, सर हम टमाटर खाते हैं, पौधा कहां से देखते हैं? पौधा अबू थोड़े लाते हैं, लेकिन आप टमाटर के बीज डाल दीजिए, सड़ा हुआ टमाटर, पौधे उड़ जाएंगे। नहीं, जब पौधे उठते हैं, टमाटर की फसल होती है, तो पत्ते पर उस पर एक कीड़ा आता है, उसे कहते हैं कैटरपिलर। कमल का कीड़ा कहती है, कमली का, वो खाने के लिए आता है। कमली का कीड़ा बहुत अच्छा है, कमल ओढ़ के रहता है। कितना अच्छा बनाया ना अल्लाह, हाँ, कमल ओढ़ के रहता, बहुत अच्छा रहता, खूबसूरत। लेकिन वो दरख्तों के लिए, पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक है, इसलिए कि पत्तों को चबा चबा के खा जाता है। जैसा बाज लोग को चबा चबा के खा जाते हैं, नहीं, दोस्त को खा जाता है चबा चबा के। बहन के वास्ते जरा पसंद करते हैं, अम्मी अब्बा किसी बेटी को खास मोहब्बत करते हैं, उसके वास्ते कहते हैं एक मिठाई लाए, मैं क्या करूँ थी, ये भी हिस्सा होता है ना। तो वहां चबा चबा के खा जाते हैं। तो ये सब टमाटर को, ये कीड़ा क्या है कि चबा चबा के खाता है। देखिए अल्लाह ताला कैसा निजाम बनाए हैं, जब वो कीड़ा जाके चबाता है, खाता है, तो पत्ता अपने आप को कड़वा कर लेता है। क्या कर लेता है? कड़वा, खाए ना इसलिए। और ये कमली का कीड़ा भी क्या करता है, वो कड़वे पन को भी मीठा बनाने के उसके अंदर वो रुतूबत है, वो ये पैदा कर लेता है और वो मीठा समझ के फिर खाता है। और दूसरे पत्ते को बोलता है मुझे खा जा रहा है, तू एहतियात से, तू भी कड़वा हो जा। और पत्ते पत्ते बातें करके पूरे बाग में मैसेज, हमारे ऊपर हमला हो गया, पूरे पत्ते कड़वे हो जाओ। क्या हो जाओ? तो कड़वे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये छोड़ते नहीं खाना, इसलिए कि उनके अंदर वो उसकी मदाफियत के कुछ रुतूबात निकल जाते हैं, कुछ केमिकल्स निकलते हैं। ये अल्लाह का निजाम है। फिर पत्ते हवा में मैसेज छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? हवा में मैसेज छोड़ते हैं। वो हवा में मैसेज मक्खियों को, डिकोरी कहते हैं नहीं, ऐसे कीड़ों को जाती है, ओ यहां हमारी ग़िज़ा है, ये कीड़े इनकी ग़िज़ा। कीड़े पर आकर वो कीड़े पर डंक मारते हैं, और डंक मारने के बाद उसके जहर से कीड़ा मर जाता है, और उसमें अंडे देती हैं वो मक्खियां, और वहां से वो फिर से नई डिकोरियां पैदा होती हैं, नई तितलियां पैदा होती हैं। तो इस तरह निजाम। तो टमाटर की पत्तियां देती हैं दरस हमको, सलीके से हुनर से जीत जाए जंग को। ये जंग है। तो इस तरह अल्लाह ताला का निजाम है। तो यहां शहद की मक्खी परवाने का खतल क्या है? शहद की मक्खी बाग में जाएगी, तो बाग में जाकर मोम बनाएगी, नहीं शहद चूस के, फूलों का रस चूस के शहद बनाएंगे। शहद से मोम भी बनता है, मोमबत्ती से लोग मोम से मोमबत्ती बनाएंगे। अब मोमबत्ती जलाएंगे तो वहां से परवाने आएंगे, जलती हुई बत्ती को देखकर, आकर क्या करेंगे? अपनी जान निछावर कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए वो मक्खी को बाग में जाने देना नहीं, इसलिए कि ये मर रहा है। कितना बड़ा फलसफा गालिब ने बयान किया। और मेरा भी शेर इसमें यही है। अब आपने देखा कि हर तरफ गुटखा फेंका जाता है, थूका जाता है और खाया जाता है, इससे कुछ फायदा नहीं होता।
फायदे की चीज करो बोलोगे तो नहीं करते लोग, जो फायदा नहीं है बहुत करते हैं। फोन में नको उठा बोले तो वज, और फोन उठाते वो देखो नको बोले तो वज देखते, ऐसा छोटा वो करो ना बोले तो करते। बच्चे भी ऐसा, उनका फितरत, इसलिए उल्टा बोलना बच्चों को, ले बेटा फोन ले, नको नको बोलता ऐसा सिखाना बच्चों को। आज फोन का जी जनरेशन हो गया। आपने देखा है कि पड़ोस के मुल्क में क्या हालात हैं जी जनरेशन के, तख्ता ही उलट दिया। कहाँ का? नेपाल में, अभी फिलीपीन में होगा, श्रीलंका में इससे पहले हुआ। जी जनरेशन है, जेड जनरेशन, जन जेड बोलते हैं इसे। तो बहरहाल ये गुटके के ताल्लुक से भी मेरा एक शेर है। देखें, गुटके का जो दमखम है जाकर पूछो कलकत्ते से, गुटके का जो दमखम है जाकर पूछो कलकत्ते से। देखिए इसमें एक तरह की मौसीकियत है, गजल में मौसीकियत होती है, कथा का रिदम होता है। अब तरन्नुम में पढ़ते हैं तो वो अलग है। गजलें आप देखेंगे फिल्म में भी पढ़ी जाती हैं, गालिब की कई गजलें फिल्मों में हैं, लता मंगेशकर ने भी गाई हैं। बहुत बहुत अच्छे मशहूर सिंगर्स गजल को गाता है और गजल को सुनते हैं, चाहे समझ में नहीं आए, इसमें मौसीकियत है ना, इसकी वजह से लोग सर धुनते हैं। तो ये गुटके का जो दमखम है जाकर पूछो कलकत्ते से, बम की ताकत से बढ़कर है देश हमारा शाहिद है। क्या तो कुछ समझ में आया? बम की ताकत से बढ़कर गुटका, गुटका 2 रुपये का, 1 रुपये का, बम करोड़ों रुपयों का। ये क्या ताकत इसमें? इसमें एक हिस्ट्री है, तारीख है। जब कलकत्ते का जिक्र है कि जाकर कलकत्ते से पूछो, तारीख बताएगा कलकत्ता। जब हावड़ा ब्रिज बना वहां पर, तो हावड़ा ब्रिज बनने के बाद बहुत मजबूत ब्रिज था, कलकत्ते और हावड़ा को जोड़ता था, और जिसकी वजह से अब उससे पहले जहाज में जाना पड़ता, सैलाब आ गया तो दूर दूर से फिर के घूम घूम के जाना पड़ता था। अभी ब्रिज बन जाने की वजह से बहुत कारोबार आसान हो गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस वक्त जापान ब्रिज के ऊपर बम बरसाए, 131 बम कलकत्ते पर और ब्रिज पर बरसाए, और ब्रिज टस से मस नहीं हुआ, कुछ भी वो नुकसान उसे नहीं हुआ, मजबूत ही रहा वो ब्रिज। और सैलाब भी आए, सैलाब बोले तो मालूम ना, पानी ज्यादा हो जाए कि घर सब डूब जाते हैं लोग, और जमीन खिसक जाती है सैलाब की वजह से, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं और लोग जिंदा दरगोर हो जाते हैं, मकान भी दफन हो जाते हैं। ऐसा होता है सैलाबों में, कितने लोग बह के चले जाते हैं सैलाबों में। तो ये तमाम होता है। और जलजले भी आए लेकिन ब्रिज टस से मस नहीं हुआ, बम ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचाया, सैलाब ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचाए, इसी तरह जलजले भी ब्रिज को नुकसान नहीं पहुंचाए, लेकिन गुटके ने नुकसान पहुंचाया। गुटके ने, 2 रुपये के गुटके ने, लोग गुटखा खाते हैं, इधर थूके उधर थूके, और इतना थूक देते हैं कि बस स्टेशन पर चलते चलते बाजू कौन भी आदमी रहा, इन्हें घर पे जाकर देखता क्या कि पैंट लाल लाल है ना, उनकी थूकदा जा रहा था। बस में बैठे रहती, खाक उन्हें नीचे जाता आता है, सफेद लिबास पहन के, ऊपर से तबरुक गिरता लाल लाल, कहीं सफेद क्या है, जरा लाल होंगे, लाल गिले, ये तबरुक, ये है हाल। हर तरफ गुटके का नुकसान। और गुटके में क्या होता है, थूक रहता है और उसमें नमक भी रहता है, और नमक और थूक, ये एसिड है इसमें, ये बनकर चूना भी रहता है, ये तमाम मिलकर एसिड बन जाते हैं। जब वो वहां पर बहुत ज्यादा लोग गुटखा खाने के आदी हैं, हर कोई हर दूसरा बात कर तो क्या नाम बोलते, ये इस तरह करते हैं लोग, नहीं नाम गुटखा। अब किसी से भी पूछो, यहाँ भी वो बाहर के शुमाल के ऐसा होती है ना, पूरा हिट करती है, नहीं तो थूक कर वो अल्लाह का कर्म ऊपर नहीं थूकते, बाद वक्त वैसा हो जाता है, हाँ थूकने पता नहीं चलता ना उनको, ऐसा भी हो जाता है। तो थूक के बाद बात करते हैं, तो वहां थूक के वो जो स्टील था, हालांकि तो मैं बोला ना, फिर रिपीट नहीं करता, तो मजबूत स्टील डैमेज हो गया था, 1913 में देखा गया तो डैमेज हो रहा है। अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए फाइबर ग्लास से उसे कवर किया जाए। गुटखा
इतनी ताकत बम में भी ताकत नहीं है, उसमें ताकत है। तो गुटखे का नुकसान तो ये है कि कैंसर भी आता है, उस पर लिखा रहता है कैंसर, फिर भी खाते हैं नहीं। और गुटखे की वजह से रेलवे वाले कितना खर्च करते हैं मालूम? रोजाना 4 करोड़ रुपए, कितना? 4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं पाकी सफाई के लिए। तो साल के कितने हो गए, हिसाब अंदाजा लगा गए। और फिर उसके साथ पानी गैलोनों लीटर। तो गुटखे का यह नुकसान है। और देखिए, और एक मेरा शेर है, मीठा गन्ने का रस हम जो पीते हैं, मीठा गन्ने का रस जो हम पीते हैं, महंगा होता अगर इस पर काम न होता, महंगा होता अगर इस पर काम न होता है। ये भी मेरा गजल का शेर है। इसमें मैं भी एक तारीख बयान कर रहा हूं। क्या तारीख है? एक जानकी अमल बोल के एक औरत है, 1934 में ये औरत एक तहकीक करती है। गन्ने का रस हम कितने में लेते हैं, पीते हैं यहाँ पर? 20 रुपये, 15 रुपये, और ज्यादा बर्फ डाल दिए तो 10 रुपये। हैदराबाद में गया था मैं एक जगह, 5 रुपये। क्या गन्ने का रस बेचते हैं? क्या बेचते हैं आप बोला? तो ऐसा होता है। तो यहां पर ये चीजें हो जाती हैं। तो उसने, साइंटिस्ट ने तहकीक करके गन्ने का जो फीका होता था, फीका, बिल्कुल फीका, अब जारी का रस एक तो फीका होता, कौन पीती फीका? और फीका जाओ भी, शक्कर डालो बोलती, चाय फीकी रही तो शक्कर डालो बोलती। तो ऐसा होता है। तो उसने तहकीक करके पहले एक्सपोर्ट करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? इंपोर्ट करना पड़ता था बाहर से। अब बाहर से आया तो आज हमको पीना पड़ता तो 200 से 500 रुपए गिलास होता, फिर इन 10 रुपए 15 रुपए में। उनकी वजह से मिठास है तहकीक से, और जिसकी वजह से हम मीठा गन्ना खा रहे हैं और मीठा जूस पी रहे हैं, वरना इंपोर्ट करके कितना उसे हो जाता था। तो बहरहाल इसमें बहुत बातें हैं। देखिए, गजल में ऐसी भी बातें होती हैं, बन के एक हादिसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बहुत सारे अशार हैं यहाँ पर। आप राहत इंदौरी के अशार, ये शेर भी राहत इंदौरी का है। तो उनकी गजलों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। यूट्यूब में तो उनकी गजलें फेमस हैं, और वो बहुत सारे शोज में भी वो जाकर गजलें पेश करते थे। अपनी शायरी का वो हुस्न और जादू जगाते थे। उनकी शायरी पार्लियामेंट में भी गूंजती थी। और उनका वो मशहूर शेर है ना, वो थोड़ी है वाला अशार, वो थोड़ी है, उनकी गजल के मशहूर अशार हैं। तो इतने मशहूर हुए कि हर जगह वो पढ़ी जाते थे। मिसाल के तौर पर उनका ये शेर, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये मशहूर शेर है। और मेरा भी एक शेर है कि टहनी से एक गुलाब ने हमको दिया सबक, कांटों में रहते रहते ही हंसना भी सीख लो। बशीर बदर हैं, वो भी अच्छे शायर हैं। उनके मुशायरों के अशार अलग होते थे, और उनके जो अखबारात के लिए, रसाइल के लिए अशार होते थे वो अलग होते थे। इसलिए कि वो अदबी सतह के बुलंद पाए के अशार होते थे। ऐसे अशार जाकर मुशायरे में पढ़े तो इंटरेस्ट ही नहीं रहता। थोड़ा मैं बुलंद सतह से गया तो आप बैठे रहे ना, वैसे ही मुशायरे फेल। ऐसे शायर कामयाब होते हैं जो उन तक रीच हो सके। तो उनके भी बहुत अशार है, मैं उनको पेश करना नहीं चाहूंगा इसलिए कि वक्त मुकम्मल हो गया है। हाँ, एक मेरे 2-4 शेर हैं। देखिए, यकजहती और मोहब्बत की फिजाएं हो, प्यार और उल्फत और मुरव्वत की अदाएं हो, खिदमत खल्क का इल्म का हो फैलाओ, नौमा हर साल यहाँ ऐसी ही हवाएं हो। तो ये मेरे गजल के अशार, प्यार मोहब्बत की हवाएं हो हर साल। यहाँ पर हर तरफ नफरत, हर तरफ बेचैनी, हर तरफ इस्तराब, हर तरफ एक दूसरे को देखे तो चिढ़, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गजल में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। और इन अशार के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाहूंगा। गजल के बारे में आज सुबह ये अशार हुए हैं मुझे मेरे से अफजल मुनासिब के फोन के बाद। मैं भूल गया था कि ये प्रोग्राम है, इसलिए कि अक्सर मैं भूल जाता हूं।
बोलना भी अच्छा है, बस दो काम याद कर ले कि हट तुम्हें ऐसा करे थे, मुझे याद है वहां से शुरू, वहां इतनी गर्मी बढ़ती है, हार्ट बीपी शुगर किडनी सब आ जाती है, तो भूलना भी अक्सर बहुत अच्छी आदत होती है। तो ये अपनी आवाज उठाएं तो गजल होती है, अपनी आवाज उठाएं तो गजल होती है, अपने आंसू जो बहाएं तो गजल होती है। दिल से दिल तक की कहानी हो गजल में यारो, दिल से दिल तक की कहानी हो गजल में यारो, दर्द से आंख मिलाएं तो गजल होती है, दर्द से आंख मिलाएं तो बहुत गजल होती है। बहुत अच्छा सुना आपने। पहले पहले मुझे ये लगा कि आप सो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं सोया, कोई नहीं सोया, इसलिए कि आप गजल के उस असल मैदान में आ गए। आज के हालात में गजल इस तरह लिखी जाती है, जो मसाइल हैं, जो आज के हादिसात हैं, जो वाकयात हैं, जिसकी मैंने अपनी खुद गजलों के अशार पेश करके आपके सामने नमूनों के जरिए, उन अशार के जरिए वाकयात को भी आपके सामने पेश किया। तो गजल वाकयात का भी बयान है, लेकिन लफ्ज थोड़े होते हैं, मुख्तसर मुख्तसर लफ्जों में वसी माने के साथ गजल हमारे सामने पैगाम देती है। अस्सलामु अलैकुम।